Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, we are back with a new lecture, and today's topic is adverb clause. So, before moving to the topic, let me remind you that we are dealing with different types of dependent clauses. So, before we read noun clause and adjective clause. Okay, so I told you that a noun clause is a clause that does the function of a noun in a sentence. Okay, and it works as a subject or object of a verb. Then we dealt with adjective clause, and I told you that an adjective is a clause that functions as an adjective in a sentence, and an adjective clause is always introduced by a relative pronoun when we talk about whom, which, and that. Okay, now this is the last lecture regarding this topic, and today we are back with adverb clause. So what is an adverb clause? As you know that an adverb clause is also a dependent clause. Okay, or we can say that it is also a subordinating clause. Are you getting me? So an adverb clause is a clause that functions as an adverb in a sentence. So it is so simple that an adverb clause is that very clause which functions as an adverb in a sentence. But before moving to adverb clause, let me tell you what is an adverb. So I hope that it is very clear to you. I will just remind what is an adverb. So you know that an adverb is a word that modifies the meaning of a verb, of an adjective, or of another adverb. Clear? For example, he speaks, he plays. Are you getting me? So he is our subject, speaks, and plays is our verb. Are you getting me? If we will write, he speaks slowly. He speaks slowly. So how does he speak? He speaks slowly. तो बेटा इस वर्ड ने स्लोली ने मॉडिफाई किया स्पीक्स को. ठीक है, इसने स्पीक इसकी मीनिंग ऐड की कि कैसे वो स्पीक करता है, स्लोली स्पीक करता है. तो ऐसा वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको हम कहते हैं एडवर्ब. इसी तरह ही प्लेज ब्यूटिफुली. आर यू गेटिंग मी? ही प्लेज ब्यूटिफुली. तो हमारा जो वर्ड ब्यूटिफुली बन गया वो भी बन गया एडवर्ब. तो हमें एडवर्ब की टॉपिक इस वक्त नहीं जाना है. लेट्स कम बैक टू our topic adverb clause, and you can find on your textbook on page number 110 that an adverb clause has a number of types, and I think there are almost given 9 types of adverb clauses. So there is nothing to be panic about this topic, as we are going to deal with this topic in 2 lectures. So today we shall deal with basic first four types of an adverb clause. So first one is adverb clause of manner. तो how can you find ये adverb clause of manner आप कैसे पहचानेंगे बेटा? तो इसके लिए एक ही वर्ड है, that is how. तो how हमें दिखाता है manner. तो how shows manner. दूसरा टाइप है
एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लॉज ऑफ, तो टाइम हमें कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस में या इस क्लास में जो यूज हुआ है ये टाइम है, तो उसके लिए हमारा वर्ड जो है वो है व्हेन। अगर व्हेन यूज होगा इट मीन्स ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। इसी तरह एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेयर। ओके, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो कंडीशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमने कंडीशनल क्लासेस पहले ही पढ़े हैं, तो इफ से वो क्रिएट हम करते हैं। आर यू गेटिंग मी? नाउ लेट्स डील विद दीज 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज वन बाय वन। So let's begin. So the first one is adverb clause of manner. For example, it is so simple. So how will you recognize it? By how? Okay. For example, I did the sum as the teacher had explained. अब इस सेंटेंस की तरफ गौर से देखिए बेटा। आई डिड द सम, इसमें वर्ब क्या है, डिड, ठीक है। वो मैंने सम किया, कैसे सम किया, एज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड। तो लेट मी रिमाइंड यू दैट मैंने पहले ही कहा कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर हमें हमेशा आंसर करता है किसको, हाउ को, कैसे। यानी आपने कोई काम कैसे किया, हाउ, कैसे किया, ठीक है। तो जो इस हाउ के आंसर में आएगा, आर यू गेटिंग मी, जो आंसर करता है हाउ को, वो क्लॉज होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। कैसे, मैनर मीन्स यहाँ पे कैसे, आर यू गेटिंग मी, हाउ, कैसे। तो मैंने सम किया, कैसे किया, एज द टीचर हैड एक्सप्लेन, जैसे टीचर ने एक्सप्लेन किया था। मैंने बिल्कुल वैसे ही सम किया जैसे टीचर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, एज द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड, ये सारा क्लास एज से लेकर एक्सप्लेन तक बेटा, ये सारा क्लास बन गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, क्योंकि इसने आंसर किया किसको, हाउ को आंसर किया। इसी तरह ही प्लेड एज द कोच हैड टॉट हिम, आर यू गेटिंग मी, उसने वैसे ही खेला, कैसे, जैसे उसके कोच ने उसे सिखाया था, ठीक है। तो ये भी आंसर करता है हाउ को, आर यू गेटिंग मी। तो अब हम ये देखेंगे ये कैसे है, ये कैसे एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है बेटा, आई डिड द सम, मैंने सम किया, तो कैसे किया, फिर यहाँ पे जो ये क्लॉज आता है ये फिर मॉडिफाई करता है इस डिड को, यानी कैसे किया आपने, जैसे टीचर ने बताया था। आर यू गेटिंग मी, आपने ये काम कैसे किया, जैसे टीचर ने बताया था। तो एज द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड, ये डिड को मॉडिफाई करता है, ये इस वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई करता है। तो ये इस, क्योंकि अभी तो क्लास है, ये एक वर्ड नहीं है, ये सारा क्लास जो है एज से लेकर एक्सप्लेन तक, इस क्लास ने अब हम काम किया किसका, एक एडवर्ब का, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये एक एडवर्ब क्लास है। मगर एडवर्ब क्लास में कौन सा टाइप, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर। क्यों, क्योंकि इसने हाउ को आंसर किया। क्लियर। नंबर सेकंड टाइप इज एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। तो बेटा ये जो है ये क्लास आंसर करता है किस क्वेश्चन को, व्हेन को। व्हेन मीन्स कब, व्हेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हेयर। He played until he got tired. He played until he got tired. तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है बेटा। He played, उसने खेला, कब तक, तब तक जब तक कि वो थक न गया, ठीक है। तो ये until है, तब तक, until ये हमें बताता है टाइम को, ठीक है। ये आंसर करता है when को। सो he played until he got tired। तो until से लेकर tired तक ये सारा क्लास बन गया हमारा एडवर्ब क्लास, क्योंकि इस एडवर्ब क्लास ने
एडवर्ब का काम किया, एडवर्ब की फंक्शन की, और इस क्लास ने मॉडिफाई किया प्लेड को, यानी उसने कब तक खेला, जब तक कि वो थक नहीं गया। ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं, जब तक कि वो थक न गया तब तक क्या किया उसने तब तक प्ले किया। अब आया समझ? तो इस क्लास ने इस प्ले को मॉडिफाई किया, तो ये बन गया हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। ऐसे ही हम और एग्जांपल लेंगे टाइम पे। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो व्हेन माई ड्रीम वॉज इन फ्रंट ऑफ मी। ये बुक पे दिया हुआ है। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, व्हेन वहां पे यूज हुआ है व्हेन, तो व्हेन यूज हो, ठीक है, अनटिल यूज हो, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंशाल्लाह वो मैं आपको फिर बाद में वो लिस्ट दूंगा। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें टाइम दिखाते हैं, ठीक है, और वो मॉडिफाई करेंगे वर्ब को, तो हमेशा ये क्या कहा कहलाया जाएगा, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग मी? नंबर थर्ड इज एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। सो इट विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन वेयर। ठीक है बेटा, ये हमेशा आंसर करिएगा वेयर को। वेयर मीन्स कहाँ। क्लियर? ओके, लेट अस सी। द एग्जांपल इज my brother follows me wherever I go. My brother follows me wherever I go. Now listen, we are talking about माई ब्रदर, ये हमारा सब्जेक्ट है। फॉलो जो है यहाँ पे बेटा, इट इज अवर वर्ब। ठीक है, तो मेरा ब्रदर जो है वो मुझे फॉलो करता है, मेरा पीछा करता है, मेरे पीछे पीछे आता है। कहाँ आता है, कहाँ फॉलो करता है, क्योंकि वेयर को आंसर करना है। कहाँ फॉलो करता है? वेयर एवर आई गो, जहां भी मैं जाता हूं। ठीक है, तो वेयर एवर जो है बेटा, वेयर एवर इज a word that shows us place. Are you getting me? Now wherever I go, wherever से लेकर go तक ये हमारा बन गया एडवर्ब क्लास। अब उनमें से कौन सा टाइप? एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, क्योंकि हमें ये प्लेस दिखाता है। तो इस एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस ने मॉडिफाई किसको किया? फॉलो किया, फॉलो को किया। हाँ, तो माई ब्रदर फॉलोज मी, तो मेरा भैया जो है वो मुझे फॉलो करता है। ठीक है, कहाँ? जहां भी मैं जाता हूं। तो वेयर एवर आई गो इट मॉडिफाइज फॉलो, यानी इसकी रिलेशन डायरेक्ट है किसके साथ? फॉलो के साथ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस। और देयर इज एग्जांपल ऑन बुक, मॉम केप्ट द कैंडीज। इट इज लाइक दिस, मॉम केप्ट द कैंडीज where Sue could not reach them. Now mom kept the candies. We are talking about mom. Kept, keep से निकला है बेटा, तो ये हमारा verb है। तो mom जो वो कैंडीज, उसने कहाँ पे कैंडीज रखी? जहां स्यू ना पहुंचे, जहां स्यू। तो यहाँ पे हमारा वर्ड खुद वेयर ही है, क्योंकि वेयर भी हमें प्लेस ही दिखाता है। ठीक है, तो ये आंसर करता है वेयर को। कैसे बेटा? आपकी मॉम ने कहाँ पे कैंडीज रखी? उसने कैंडीज वहां पे रखी जहां। तो वह वेयर की दो मीनिंग है, यहाँ पे कहाँ आ गए, यहाँ पे जहां। ठीक है, जहां स्यू ना पहुंचे वहां पे उसने रखी। और गेटिंग मी? ना वेयर से लेकर वेयर स्यू कुड नॉट रीच, रीच तक बिल्कुल जैसे बुक पे है, ये सारा बन गया हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। नंबर 4 इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, तो कंडीशन हम कैसे क्रिएट करते हैं? इट इज क्लियर टू यू। इफ या वेदर से, मोस्टली हम इफ से क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल सक्सीड, you will succeed if you follow your dream. Now you will succeed if you follow your dream.
अब बेटा यहाँ पे ऐसे इस सेंटेंस में या ऐसे क्लास में एक कंडीशन क्रिएट की जाती है। यू, हम सब्जेक्ट या यू है यहाँ पे, यू विल सक्सीड, आप जरूर कामयाब हो जाओगे। तो हमारा वर्ब यहाँ पे है सक्सीड, कामयाब होना, ठीक है। आप कामयाब हो जाओगे, मगर कंडीशन क्या है, कब कामयाब हो जाओगे? इफ यू फॉलो योर ड्रीम, जो आपका टारगेट है, ठीक है, आपकी जो मंजिल है, आपका जो ड्रीम है, जो आपका एम है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। सो ये इफ जो है बेटा, इफ से लेकर इफ यू फॉलो योर ड्रीम, ये सारा क्लास बन गया हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, क्योंकि इसमें कंडीशन क्रिएट की गई, ठीक है। और एक बात, इस सक्सीड को रिलेशन किसके साथ है? इस एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन के साथ, क्योंकि ये जो यहाँ पे एडवर्ब क्लास है बेटा, ये मॉडिफाई करता है किसको? सक्सीड को। कैसे? देखिए, आप सक्सीड कब हो जाओगे? कंडीशन क्या है? आपको फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है? ड्रीम को फॉलो करना है। तो तब क्या होगा? तब आप कामयाब हो जाओगे। तो इस सक्सेस की रिलेशन किसके साथ है? जब फॉलो के साथ है। आर यू गेटिंग मी? तो ये सारा आप बन गया, इफ यू फॉलो योर ड्रीम, ये बन गया हमारा एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। ऐसी और एग्जाम्पल है, इफ द रेन स्टॉप्स, if the rain stops, we will go to play. We will go to play. Before moving to this sentence, let me tell you बेटा, जब मैंने ये सेंटेंस लिखा, you will succeed if you follow your dream, मैंने लास्ट में खाली फुल स्टॉप यहाँ पे रखा, कॉमा कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब है बेटा, अगर एडवर्ब क्लास में से कोई भी टाइप अगर वो बाद में आए, अगर वो सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं आता है बल्कि बाद में आता है, तो कॉमा यूज नहीं होगा। मगर अगर एडवर्ब क्लास से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, चाहे कोई भी टाइप हो, मैनर्स में हो या टाइम में, प्लेस में, व्हाटएवर, तो अगर ये पहले आए, जैसे स्टार्ट ही होता है एडवर्ब क्लास से सेंटेंस, तो हमेशा उस एडवर्ब क्लास के बाद कॉमा लगाना है। ये हमेशा याद रखिए, ठीक है। इफ द रेन स्टॉप्स, फिर यहाँ पे कॉमा लगाना है, वी विल गो टू प्ले। तो हमने अब और एक कंडीशन क्रिएट की। मेन क्लास हमारा ये है, वी विल गो टू प्ले, यानी क्या, हम खेलने जाएंगे। कब खेलने जाएंगे? तो कंडीशन हमने क्रिएट की, अगर बारिश थम जाएगी, अगर बारिश रुक जाएगी। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे गो है, जाना, तो ये हमारा वर्ब है यहाँ पे। तो इसे मॉडिफाई करता है क्या? स्टॉप, इफ द रेन स्टॉप्स। आर यू गेटिंग मी? तो इसकी रिलेशन इसके साथ है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पहले ही एडवर्ब क्लास आया, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे स्टॉप्स के बाद। वी विल गो टू प्ले, फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इसने मॉडिफाई किया, यहाँ से इफ द रेन स्टॉप्स ने मॉडिफाई किया किसको? गो को, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? कब जाएंगे? जब बारिश रुक जाए। तो गो को मॉडिफाई किया इस क्लास ने, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लास। और कौन सा एडवर्ब क्लास? एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद रिमेनिंग सब टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लासेस। टिल देन, टेक केयर एंड फी अमान अल्लाह।